very This basic of conference will now networking. be recorded. And after that, we'll move ourselves to the Azure Compute Services, Web Application Services, how to host our website with the help of Azure App Services, how to configure CMS based website. Then thoda sa part Azure Active Directory का, then we'll start working with CI/CD pipelines. क्लियर, दिस इज आवर एजेंडा। ठीक है। ताकि हम्म, एटलीस्ट आपको भी कुछ आइडिया लगे कि इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट, अगर क्लाइंट ने कोई टिकट जनरेट की है किसी ऑटोमेशन से रिलेटेड, किसी डेवलपमेंट पार्ट से रिलेटेड, सो यू शुड अंडरस्टैंड हम्म, अबाउट द बैक एंड टास्क कि कैसे बैक एंड में टास्क परफॉर्म किया जाएगा। क्लियर? ओके। हाँ जी। So I'm going to start from the basic of networking. It's not a local network. I'm talking about the Azure networking. So over Azure ओके। networking, वैसे तो बहुत सारे कंपोनेंट आपको आने चाहिए। आई होप यू गाइज आर ऑलरेडी कवर्ड इन AG104, जहाँ जो भी आपने AG104 किया है, हाँ वहां जी। पे आपने क्लियर किया होगा, बिकॉज यू गाइज आर सर्टिफाइड विद AG104, सो तो डेफिनेटली उसमें कोई डाउट नहीं है कि, but let me know about, if you really want to be an expert in case of Azure networking, what are the points you need to keep in your mind? Like we need to start ठीक from है। the very basic. Like you should know about the concept of IP address, class of IP हम्म, address, version of IP address, subnet mask of IP address. I'm talking about the default. And the another part is हम्म, IP address version. Okay. Next, you should know ठीक है। about the gap between public and private IP address. You must need to know about the difference between public and private IP address. Our हम्म, responsibility, we should know about subnetting, and also need to know about the CIDR calculation method. Okay. And next, once we complete this part, we'll move ourselves to the VNet. Under the VNet, our responsibility, we should know about the subnets of VNet. And next, you need to know about the complete information about network security group. You also need to know about the VPN implementation हम्म, using Azure portal. Uh, Using Azure portal, our responsibility, we should know about VPN versus express route, ठीक है। right? VPN versus express route. You should know about the gap. And next, you need to know about Azure load balancer services. Not only in case of theoretical part, you also need हम्म, to know about the implementation process of Azure Load Balancer. Next, components of components of Azure LB. Lots of components are available in Azure Load Balancer, like हम्म, NAT, gateway, configuration, NSG with subnet. Lots of components you need to know. And the last ठीक है। option, Azure Endpoint. These all are core and important component of networking, Azure networking. अगर हमें ये points clear है ना, definitely no one can beat you in case of managing developer page. ओके। डेवलपर टीम के साथ 2 से 3 आर्किटेक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर को इन्वॉल्व किया जाता है, ताकि उनकी हम्म, सर्विसेज को डेटाबेस से प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा सके। लेट मी ठीक गिव है। यू वन एग्जांपल, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। एक छोटा सा एग्जांपल है, लाइक आई एम आई जस्ट क्रिएटेड 2 कंप्यूटर, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिकल मशीन। मेरे पास 2 लैपटॉप है, ठीक है। यहाँ हम्म, पे कुछ डेटा है, राइट, और यहाँ पे भी कुछ ठीक है। डेटा अवेलेबल है। I wanted to transfer my data from one machine to another machine. What are the हम्म, procedure? What are the prerequisites? डेटा ट्रांसफर करना है इसमें। Simple prerequisite. I just wanted to know about the method. Or mediator जिसको आप यूज करेंगे। शुभम। अब एक तो ब्लूटूथ से भी कर सकते हैं। अगर ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं हम, तो ब्लूटूथ बिल्कुल से डेटा बिल्कुल। हम ट्रांसफर कर सकते हैं। या यप। फिर अगर आपका डेटा वन ड्राइव में है या गूगल हम्म ड्राइव में है, हम्म। तो वो तो इजीली एक्सेस ही हो जाएगा, उसको तो ट्रांसफर करने की ज़रूरत ही नहीं है। It और means that.
No, we don't have a internet. I wanted to make a communication between each other without internet. Na, we don't have internet. वीपीएन हाँ के तो थ्रू। इसमें प्राइवेट आईपी से हम कर सकते हैं शायद इसको लोकल कर सकते हैं ना. We हाँ जी can हाँ make जी। a communication with the help of cable ना. We just need to add one switch. या switch नहीं भी लगाएंगे तो एक इथरनेट केबल के थ्रू आप कम्युनिकेट कर पाओगे. अच्छा अच्छा ठीक है। राइट. आप इथरनेट पेयरिंग नहीं केबल कर के थ्रू सकते। कम्युनिकेट कर पाओगे. आपको सिर्फ इसकी प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन करनी होगी. एक की आईपी हाँ एड्रेस जी हमने 1 2 रख दी, दूसरी की आईपी एड्रेस हमने 3 रख दी. एंड वी आर एबल टू मेक कम्युनिकेशन. इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है. इज दैट करेक्ट? हाँ जी हाँ जी। तो तो पेयर अब कराएंगे ना आप, आईपी को। हाँ, कम्युनिकेशन कराएंगे ना, पिंग करा के देख लेंगे. पिंग करा के देख लेंगे हाँ जी। एंड देन वी आर एबल टू ट्रांसफर. नाउ ठीक है, यहाँ पे आप कम्युनिकेशन कर पा रहे हो क्योंकि आपने आईपी एड्रेस असाइन कर दी. और आईपी एड्रेस कहाँ पे असाइन होती है? एनआईसी पे, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे, नेटवर्क अडाप्टर कार्ड पे. हाँ जी हाँ जी। इज दैट करेक्ट ना? अगर एनआईसी है तभी आप आईपी कॉन्फ़िगर कर पाओगे. अदरवाइज वी करेक्ट डोंट करेक्ट हैव ऑप्शन टू कॉन्फ़िगर द आईपी एड्रेस. करेक्ट। यस। चलो मैं आपको व्हाई वी नीड टू नो अबाउट इट. बट आपको कुछ ऐसे रिसोर्सेज से भी कम्युनिकेट कराना पड़ेगा जिनके पास नेटवर्क अडेप्टर है ही नहीं. आपने एज्योर में एक स्टोरेज पढ़ा होगा. आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्लॉब स्टोरेज. हाँ जी पड़ा है हैव यू ब्लॉब आइडिया अबाउट स्टोरेज। ब्लॉब स्टोरेज? व्हाट इज यूज ऑफ हाँ जी। ब्लॉब स्टोरेज? इसमें जितनी भी लार्ज आपकी वो ऑब्जेक्ट, म्यूजिक फाइल्स वगैरह, फाइल फोल्डर जो हाँ होता है जितने वीडियोस भी, वगैरह जेपीजी सारे इसमें होता है। हाँ फाइल्स वगैरह हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। फोटोज वगैरह, जो भी अनस्ट्रक्चर्ड स्टोरेज होती है ना, तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा उसमें। को हम इसमें स्टोर करते हैं विच इज कंसीडर एज ए ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज. इज दैट करेक्ट? इसको हम हाँ कैसे जी। कंसीडर करते हैं? ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज. चलो यहीं पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं यूसेज. व्हाट आर द यूसेज ऑफ एज्योर ब्लॉब? क्या क्या कर सकते हैं हम? हम्म, इसमें फर्दर टाइप्स भी होते हैं ब्लॉब के, जैसे ब्लॉक ब्लॉब होता है, हाँ, पेज नहीं ब्लॉब नहीं ठीक होता है. है। Exactly. Three different types of blobs are available. I'm talking हाँ about जी। the simple blob. हमने अपने storage account में एक blob create किया. But I wanted to हम्म, know about the utilization, the purpose of blob ना. जितना भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है जैसे इमेजेस हैं वीडियोस हैं वो आप उसमें स्टोर कर सकते हो। लार्ज ऑब्जेक्ट्स उसमें स्टोर कर सकते हो। इसमें आई थिंक एक स्पेसिफिक वो भी होता है कि इतने ही स्पेस अवेलेबल रहता है इसमें, ऑब्जेक्ट अपलोड होता है इसमें। By default 16 TB रहता है, but अगर आप कोऑर्डिनेट करते हो, कोटा बढ़ाते हो, हाँ तो जी। अनलिमिटेड स्पेस ये प्रोवाइड करता है. ठीक है. ओके। अब अगर हम यहाँ पे बात करें यूज केसेस के, तो पहला यूज केस है यूज एज अ गूगल ड्राइव. वी कैन डू दैट. हम इसको ऐसे अच्छा गूगल ड्राइव ठीक है। यूज कर सकते हैं. ठीक है ना? हम्म। Second, use to host static website. आप इसको static website के hosting के लिए भी यूज कर सकते हैं. Number third, use to put images and shorts video हम्म। for your dynamic website. For your dynamic website. जीते Is स्टैटिक that और okay? डायनामिक वेबसाइट्स मतलब इज इट रिलेटेड टू आईपी एड्रेसेस जिसमें चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? नहीं 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 नहीं. स्टैटिक एंड डायनेमिक का मतलब ये हुआ. डायनेमिक का मतलब है जिसके अंदर आप 24/7 और लाइव चेंजेस कर पाओ. लेट्स टेक एन अच्छा। एग्जांपल. ठीक है ना? जितनी भी ई हम्म। कॉमर्स की वेबसाइट्स होती हैं, जितनी भी ई अच्छा कॉमर्स की ठीक है। वेबसाइट्स होती हैं, ऑल द ई कॉमर्स वेबसाइट आर कंसीडर एज ए डायनेमिक वेबसाइट. डायनामिक ठीक है। And you know that each and every e-commerce website contain thousands of product. हम करेक्ट। बिल्कुल नॉर्मल की बात कर रहे हैं, लोकल की बात कर रहे हैं, अमेजन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं. मिलियंस में प्रोडक्ट हैं इसके. और यू नो दैट आई वांटेड टू बाय वन एयर कंडीशनर. ठीक है ना? मुझे हम्म। एक एसी परचेज करनी है. एंड इट गिव यू द डिटेल्स एज पर योर रिक्वायरमेंट. एज पर हम्म। योर रिक्वायरमेंट इन द सेंस,
लाइक इट विल गिव यू द फिल्टर। आप यहाँ पे ना फिल्टर लगा दो, मेरे को ना वोल्टास का ही चाहिए। इट हाँ विल जी। गिव यू द लिमिट कि भाई आप ना मैक्सिमम और मिनिमम आप अपनी वैल्यू बता दो कि आपका बजट कितना है, अकॉर्डिंग टू दैट आई विल फिल्टर इट। हम्म। सो व्हाट यू थिंक, ये जो इमेजेस दिखाई पड़ रही हैं क्या ये वेबसाइट में है? ये ये जो स्टोरेज से आ फिल्टर्स रही है लगे कहीं हैं से। ये वेबसाइट में है? नो। डेटाबेस में है तो। Website can give you only the interface and the अच्छा। information about image stored by the storage and the filter managed by the database. ओके। Got it what I'm saying? It means that हाँ जी। अगर आप एक कोई e-commerce की डायनेमिक वेबसाइट होस्ट कर रहे हो ना, so हम्म। what are the prerequisite? You must need to set up your own storage. You need to ओके। establish your database server, and हम्म। then you need to design your hosting platform. This is web host जहां से आप वेबसाइट होस्ट करेंगे। दिस इज योर सिक्वल डीबी, दिस इज योर स्टोरेज, और हर एक का पार्ट आपका आपस में कम्युनिकेट करेगा। देन यू आर एबल टू मैनेज योर वेबसाइट। इसकी ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है जस्ट डिजाइन द लेआउट ऑफ आवर वेबसाइट। थीम हम्म। चूज करना, बटन्स चूज करना, उसके जो आइकॉन्स दिखते हैं उन आइकॉन्स की लोकेशन सेट करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके वेब पेज की। इज दैट करेक्ट? हाँ जी। एंड जो इसके अंदर कंटेंट दिखाई पड़ते हैं, प्राइसिंग की डिटेल, फिल्टर टू फिल्टर अकॉर्डिंग टू द ब्रांड नेम, डिसाइड द हम्म। बजट, ठीक है ना, ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है सिक्वल के टेबल में। और जो प्रोडक्ट की इमेज दिखती है, जो प्रोडक्ट की वीडियोस मिलती है, ये इमेज और वीडियो की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टोरेज लेता है। स्टोरेज की होती है। ओके। इट मीन्स दैट स्टोरेज, then database, then our web page, all are the important part to host our dynamic website. ओके। Clear? हाँ जी। Now, these all are the use cases why we are trying to understand about the gap between making a communication with the help of IP address. सो ब्लॉब का एग्जांपल हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि जब आप ब्लॉब में अपना इमेज या वीडियो या शॉर्ट क्लिप वगैरह रखेंगे और इस हम्म। इमेजेस को अपनी वेबसाइट से जब जोड़ेंगे, तो वहां पे आईपी एड्रेस नहीं आएगा। आई डोंट थिंक वी आर एबल टू अच्छा। कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस फॉर आवर स्टोरेज अकाउंट। डू वी हैव एनी ऑप्शन? अगर मैं एज्योर पे जा करके अभी यहाँ पे एक स्टोरेज क्रिएट करता हूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आई एम गोइंग टू क्रिएट माय स्टोरेज अकाउंट, राइट? स्टोरेज अकाउंट पे अगर हम क्रिएट करते हैं, डू वी हैव एनी सिंगल ऑप्शन टू कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस इन स्टोरेज अकाउंट? शायद नहीं होता है। नहीं होता, बिकॉज it is not a type of resource, it is not a type of computer। ये हम्म। आपका बिल्ट इन सर्विस है। इसमें कोई भी निक कार्ड, कोई भी इथरनेट कार्ड नहीं है जिससे आप नेटवर्किंग कर पाओ। Then ठीक है। question, how we can make a communication between SQL database to our storage? क्योंकि ये SQL से जब तक नहीं जुड़ेगा, you are unable to हम्म। access your data that you put on your blob storage। Clear? स्टोरेज एक्सप्लोरर से कर सकते हैं अगर कनेक्शन करना है तो, नो या कुछ नो और होता भाई, है? स्टोरेज एक्सप्लोरर आपके बेस मशीन से कम्युनिकेट कराएगा ना। अच्छा। ठीक है। Azure Storage Explorer applicable to access your data, access your Azure Storage account data from on premises, क्योंकि Storage Explorer आप यहाँ पे यूज करोगे बेस पे। हम्म। देन कीज अच्छा। के थ्रू, नेम के थ्रू, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर के थ्रू इनको कम्युनिकेट करा पाते हैं ना, करेक्ट करेक्ट, हाँ जी हाँ जी। है ना। याद उसका आ गया। आपके डेटाबेस हाँ से जी। कोई मतलब नहीं है, which is not applicable for that making a communication between database to our storage services। एंड ओके ओके, नाउ ठीक है। अब इस स्टोरेज को यूज करने के लिए एक ऑप्शन आपको मिलता है विच इज एंड पॉइंट। ठीक अच्छा, है? एंड पॉइंट से होगा। जो ठीक है। आप इथरनेट का टास्क यूज करते थे ना, जो इथरनेट हम्म। के आईपी एड्रेस के थ्रू कम्युनिकेशन कराते थे, वो आप एंड पॉइंट के थ्रू कॉन्फ़िगर करेंगे। इट गिव यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। लाइक यू नो हम्म। दैट एक सिंगल स्टोरेज अकाउंट में एक दो तीन चार
अगर डेटा लेक को भी ऐड करें तो 5। यहाँ पे देखिए स्टैटिक वेबसाइट का भी आपके पास रिसोर्स आईडी अवेलेबल है। सो दीज ओके ऑल आर द सर्विसेज जो आपको एक ही स्टोरेज अकाउंट में मिलता है। और हम ओके अपना डेटा कहाँ रखे हैं? ब्लॉब पे रखेंगे। ओके ऑल गुड? मतलब जिस जिस स्टोरेज पे हम डेटा रख रहे हैं, हर रिस्पेक्टिव स्टोरेज का हमारे पास अवेलेबल एंड पॉइंट। हाँ, it give you the endpoint and network of VNet can give you option to configure endpoint। ठीक है ठीक है ठीक है। सिंपल सा मीनिंग ये है कि एज्योर पोर्टल के ऊपर आपको दोनों तरीके की सर्विसेज मिलेंगी। एक सर्विस जो आपको आईपी एड्रेस के थ्रू कम्युनिकेट कराएगा, दूसरी सर्विस जो हम्म। आपको एंड पॉइंट के थ्रू कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा। ओके 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 ठीक है। एज ए डेवलप इंजीनियर आपको आईपी नहीं मिलेगी। दिस इज फर्स्ट ओके एग्जाम्पल। ओके आने वाले टाइम पे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखोगे कि आईपी हम्म। एड्रेस नहीं है और आपको कम्युनिकेट कराना है। ओके दैट टाइम माइंड में ये रहेगा नहीं यार, एंड पॉइंट से करना है हमें, क्योंकि आईपी एड्रेस है नहीं, तो एंड पॉइंट फटाफट से एंड पॉइंट बनाओ और मेक अ कम्युनिकेशन। ओके स्केल ठीक है। करने इज का दैट ऑप्शन ओके? आता होगा सर, ये जितने भी ये रिस्पॉन्स आईडी रिसोर्स आईडी है, सॉरी। तो सर ये जो एंड पॉइंट्स आप बोल रहे हो कनेक्शन कराने का, हम्म जब हम्म, आप वीनेट क्रिएट करते हो तो वहाँ पे ये ऑप्शन आता होगा ना, रिसोर्स आईडी एंड ब्लॉब सर्विसेज। बिल्कुल 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 हाँ बिल्कुल। आता है। इज दैट ओके? हाँ जी ओके। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अकॉर्डिंग टू द एजेंडा। ये सभी पॉइंट्स हमें क्लियर होने चाहिए एंड देन विल मूव आवरसेल्फ टू नेक्स्ट पॉइंट। ओके what about IP? Good. Class is good. Version good. हाँ जी। And subnet, IP address, ये सारी चीजें ओके है हमारी। जीत ये वर्जन थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, वर्जन क्या है इसमें? IPv4 IPv6 भाई। अच्छा अच्छा ठीक है डन। IPv4 and ओके ओके IPv6। V6 ठीक है। Length of IPv4 and IPv6, लेंथ क्या है इनकी? 0 to 255। No, I'm not talking about the range. Length of IPv4 and the length of IPv6। आई थिंक ये 64 बिट की होती है IPv4। and IPv6 ये 32 बिट की होती 6 तो ज्यादा होना चाहिए भाई। 64 बिट होगा या तो ये फिर 128 है। अच्छा ठीक है, 32 bits ठीक है। and 128 bits। ओके Is that ओके okay? ओके हाँ जी हाँ जी। चलो, one more point about public and private IP address। May I know the difference between public and private IP address? Public IP प्राइवेट तो address is that IP address which anyone can use publicly. Hmm. Uh, and private IP address we do not need any internet connection. जैसे That we अगर can आप use for the local communication, हाँ Yes, yes. है ना, लोकल कम्युनिकेट कराने के लिए यस प्राइवेट आईपी एड्रेस। और अगर आप करेक्ट। इंटरनेट का एक्सेस करना चाहते हो तो पब्लिक आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी। इज दैट हाँ जी, करेक्ट? ऐसे हम लोड बैलेंसर क्रिएट करते हैं उसमें भी ये यूज होती है। आईपी एड्रेस प्राइवेट से ही हम आईपी लोड बैलेंसर चला देते हैं, मतलब इंटरनेट पे अगर चलाना हो तो पब्लिक आईपी एड्रेस, और वैसे प्राइवेट। विद इन द वीनेट चलाना है तो प्राइवेट, एंड आउट यस ऑफ यस। वीनेट चलाना है तो पब्लिक आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? ठीक है, लाइक दिस इज अवर लोकल कंप्यूटर, राइट? दिस इज अवर लोकल मशीन दैट आई एम यूजिंग। सो हम्म। अभी इस केस में हमारा जो कंप्यूटर है वो कितनी आईपी एड्रेस कंटेन करके रखा है? अगर ये लोकल मशीन आपकी हाँ, दिस इज माय लोकल कंप्यूटर विंडोज मशीन। इसमें कितनी हाँ नंबर ऑफ आईपी एड्रेस हमारे पास अवेलेबल है करंट टाइम पे? अगर एक ही होगा, इस सिस्टम का खुद का होगा, और हम्म। एक जो अगर ये वाईफाई से कनेक्टेड है तो एक राउटर का आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा होगा आपको, एक जो प्राइवेट आईपी होगा आई बिलीव। अच्छा, इसमें कितने तरीके की आईपी है? इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों है या सिर्फ एक आईपी एड्रेस है? नहीं, सिस्टम का तो अपना एक खुद का आईपी होगा, और जब आप हम्म। इसको राउटर से कनेक्ट करते हो तो राउटर भी आपको एक आईपी प्रोवाइड करता है। आई थिंक प्राइवेट आईपी होता है पब्लिक वो। आई
क्योंकि राउटर का भी एक वो होगा ना, डेडिकेटेड आईपी एड्रेस। राउटर केवल गेटवे आईपी एड्रेस देता है। आईपी कॉन्फ़िग अब आप एग्जीक्यूट करते हैं, इट विल हाँ गिव जी, यू वन आईपी एड्रेस, इट गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट योर आईपी एड्रेस। ये मेरा इथरनेट है, 1.11 हाँ इसकी जी। आईपी एड्रेस मिल रही है, एंड दिस इज द गेटवे हम्म। आईपी एड्रेस, करेक्ट? ओके, But हाँ जी। both the IP address are private. हम्म। If your device is ओके, connected with public, then you have to check what's my IP. It will give you the information about your own IP address जो इस टाइम पे आपका कंप्यूटर कंटेन करके रखा है। This is my public IP address. इस मशीन की ये public IP address है और ये private IP address है। ठीक है। Now question, the difference between public and private IP address. The importance of public and private IP addresses. Mhm. ओके। Public IP address I can use to host any kind of services to worldwide. मैं अपने सिस्टम से कोई हम्म। सर्विस वर्ल्ड वाइड ट्रांसफर करना चाहता हूँ, सो उस केस में पब्लिक आईपी एड्रेस कम इनटू द पिक्चर। आई वांटेड टू मेक अ कम्युनिकेशन विद इन द इन्वायरमेंट, इंट्रा साइट में हमें जो चीजें करनी है वो प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू होगी। ओके। क्लियर? हाँ और जी। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको आईपी एड्रेस देख करके आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है और ये पब्लिक आईपी एड्रेस है। रेंज से। ओके। Right? Within second, you need to identify, yes, this is the private IP address and this one is public IP address that you can use to worldwide. And the public IP address is unique. अगर मेरे को ये IP address मिल रही है 182.69.80 182 again 1.51, ये दुनिया में किसी को और को IP address नहीं असाइन होगी ये। It's a unique and applicable for individual हम्म। user. ठीक है, ठीक है। Clear? हाँ जी। Okay. Okay. Now, let's talk about, ये थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा about the difference between public and private IP address. But before that, let me help you to understand about the gap, like as a class of IP address, हम्म। range of entire IP address, and default subnet mask. ओके। So class of IP address A, B, C, D, and E. डी ई। पांच हम्म। classes है ना? हाँ जी, हाँ And जी। the range is started from 0 to 126. 128 to 191, हम्म। 192 to 223, 224 to 239, 240 to 254. This is the range of IP address for class ओके। A, B, C, D, and E. ठीक है? ठीक है। Subnet mask 255.0.0.0 for A class, 255.255.0.0 for .0.0। B class, and 255, 255 and 255.0 for C class, and ये आपके लोकल नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल नहीं है, which is used for the multicasting, हम्म। and this is applicable for the research and development. ओके। Means we are able to utilize only these three different types of IP addresses in local area network. ओके। इनका यूज हम नहीं कर सकते। अगर आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने भी जाओगे ना, तो ये आईपी हम्म। एड्रेस रिजेक्ट हो जाएगी। ओके। इज दैट ओके? हाँ जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर पॉइंट, range of public and private IP address. Range of public and private IP address. Class A, class B एंड क्लास सी, केवल हमें तीन ही क्लास के बारे में डिस्कस करना है, बिकॉज वी आर ऑथराइज टू कॉन्फ़िगर ओनली these three different types of classes, and I'm talking ओके। about the private IP range. ये हमारे पास private IP address range है। The starting of class A IP address 10 से होती है शायद। 10.0.0.0 to 10.255.
172.255.255.255. This is the range for Mhm. class A. 172.16.0.0 to 172.31.255.255. 192.168.0.0 to 192.168.255.255. These all are the private IP address. इनको हम ओके। कंसीडर करते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस. हम्म। ऑल गुड. हाँ जी। इसके बाद कोई भी आईपी एड्रेस आपको दिखती है, कोई भी आईपी आपको दिखती है, लाइक द आईपी एड्रेस इज स्टार्टेड फ्रॉम 191.100.10.20, ठीक है, इट मींस हम्म। दैट दिस इज पब्लिक आईपी एड्रेस. करेक्ट। एनी रेंज जो भी आपको दिखती है वो आपकी हम्म। पब्लिक. चलिए, एक आईपी एड्रेस है 172.92.10.20. ये कौन सी आईपी एड्रेस है, पब्लिक या प्राइवेट? ये पब्लिक है ये भी। हाउ वी कैन आइडेंटिफाई? यूनिक। क्योंकि क्योंकि क्लास बी में प्राइवेट की 172.16 से 172.31 की रेंज है, हाँ जी, तो ये रेंज तो उसमें नहीं है 172.192। एग्जैक्टली. इट मींस दैट आपकी जो रेंज है वो 16 टू 31 के बीच में होनी चाहिए, 1 है। और आपने यहाँ हाँ पे जी। 92 मेंशन किया 92 है। है. इट मींस दैट हाँ जी। इट इज पब्लिक आईपी एड्रेस. ठीक है। करेक्ट. हाँ जी। So this is the actual difference between public and private IP address and range of IP addresses and about the subnet. और यहाँ पे हमने थोड़ा सा डिस्कस किया about the IPv4 and IPv6. 32 bits 6। address contained by the IPv4 and 128 bits contained by the IPv6. Right? ओके। Now, एक दो. What about subnetting? सब नेटिंग भी जीत पढ़ा हुआ है हम्म. कि आईपीस को ब्रेक करते हैं, उसमें किया हुआ है ये भी। Okay. So subnetting या CIDR या एड्रेस स्पेस, इनको हम किसी भी नेम से बुला सकते हैं. हम्म। CIDR, which is considered as a classless inter-domain routing. Second one is हाँ जी। address space, ठीक है, and third is related to the subnetting. So the meaning of subnetting, it will provide you calculation method. एक छोटा सा example देख लेते हैं because we don't have enough time. So for example, we have 192.168.1.0 and /25. This is our CIDR value, which is considered as a CIDR value. ठीक है ना? हम्म। So with the help of CIDR value, our responsibility to calculate subnet mask, and the second one is usable IP address. ये दोनों चीजें आपको कैलकुलेट करनी है हम्म। हाँ जी। with the help of CIDR. तो our responsibility to calculate it. इसका हमें एक ये टेबल होता है। दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है. हाँ हाँ, ठीक है, आपने कोई भी मेथड यूज करिए, मल्टीपल मेथड है, टेबल हाँ भी जी। है, मैनुअल भी है, इट्स अप टू यू. हमें रिजल्ट हम्म। चाहिए, नो मैटर आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो. राइट, टेबल के थ्रू ओके। यूज कर हाँ रहे जी। हो या फिर आप मैनुअल मेथड कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, बट प्लीज डू नॉट यूज गूगल. ओके ओके ठीक है। ठीक है ना, बिकॉज यू नो दैट गूगल पे सभी कुछ है एंड विद इन सेकेंड आपको रिजल्ट मिल जाएगा. बट करेक्ट। in front of client, in case of consultant, as a consultant, नहीं चलेगा गूगल. आपने कैलकुलेट करना हाँ जी। पड़ेगा खुद से. आप पेपर पेन यूज ओके। करो या कुछ भी यूज करो, बट आपको कोई भी गूगल का प्लेटफॉर्म या कोई भी टूल का इस्तेमाल नहीं करना है टू कैलकुलेट द वैल्यू. हम्म. ओके ओके। ठीक है, तो मैं आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल एंड आफ्टर दैट यू नीड टू कैलकुलेट. अब इसमें हमें ओके। कैलकुलेट करना है, बहुत छोटा सा मेथड यूज करेंगे. हम्म। दिस इज /25. इट मीन्स दैट, सॉरी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 192.
and 192 is class C, I क्लास guess. सी। हाँ जी। As per the range, एक चीज हमने आइडेंटिफाई किया कि क्लास सी। और एक हम्म। इम्पॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ पे, जो ये क्लासेस पढ़ रहे हैं ना हम, जो सबनेटिंग पढ़ रहे हैं या जो हम्म। CIDR पढ़ रहे हैं ना, these हम्म। terms we can use only for IPv4, ओके। which are not applicable for IPv6 based IP address. हम्म। ओके ओके। हम्म। अभी अभी हम सभी IPv4 ही यूज करते हैं कंपनीज में, ठीक है, और आने ठीक वाले है। ठीक 5 से 7 साल तक यही चलने वाला है। ठीक है। लेकिन थिंक अबाउट, अगर कंपनियां IPv6 का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें, तो ये जो टाइम हम हम्म। लगा रहे हैं ना इनको सीखने के लिए, इनकी जरूरत ही नहीं हम्म। पड़ेगी। ओके। सबनेटिंग, CIDR and calculation of IP address are not applicable for IPv6 based IP address. ठीक है। उसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी IPv6 को कैलकुलेट करने की, ना उसमें सबनेट होते हैं, ना सबनेटिंग होती है, ना CIDR हम्म। कैलकुलेशन होता है, राइट। अच्छा। कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती उसमें आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए। बट ओके ओके IPv4 में इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कैलकुलेट द CIDR वैल्यू। क्लियर? ओके। हाँ जी। तो यहाँ पे हमने दो चीजें फाइनल कर ली विद इन सेकेंड। पहला, ये हमने फाइनल कर दिया कि ये तो IPv4 है, और हाँ जी। IPv4 को क्लियर करने के बाद ये क्लियर हो गया कि ये तो 32 बिट का होगा, 32 हाँ बिट्स जी। का है। और हम्म। दूसरा हमने क्लियर कर लिया कि भाई ये तो क्लास सी है। इज दैट करेक्ट? क्लास सी है। हाँ जी, हमने क्लास सी आईपी है। एड्रेस को क्लियर करके ये कंफर्म कर लिया कि दिस इज रिलेटेड टू द IPv4 और ये क्लास सी की आईपी एड्रेस है। गुड। हम्म। नाउ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें सबनेट नहीं पता, हमें आईपी एड्रेस नहीं पता कि कितनी यूज कर पाएंगे, अगर हमें हम्म। क्लाइंट ने ये CIDR वैल्यू प्रोवाइड कर रखा है। चलिए इसको कैलकुलेट ओके। करते हैं। टू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला में कभी हम्म। कभी हम भूल जाते हैं, फॉर्मूला तो कैलकुलेट नहीं हो पाता, विद इन सेकंड नहीं कर पाएंगे। नाउ 32 बिट टोटल है, ठीक है ना। ये IPv4 की हम्म। कैपेसिटी है 32 बिट, द लेंथ ऑफ IPv4 32 बिट्स। हम्म। हमारे पास CIDR वैल्यू कितनी है, हमारे पास लेंथ कितनी दे रखी है, 24। टोटल 25 लेंथ है। कितनी है, 25, सॉरी, टोटल लेंथ हाँ जी। कितनी है, टोटल लेंथ है 32, और हमारे पास जो लेंथ दी गई है वो 25 की दी गई है। द हाँ जी। मीनिंग ऑफ लेंथ, जो स्लैश के बाद आपको वैल्यू दिखाई पड़ रही है CIDR की, वो ये बताता है कि आप इतने बिट्स कंज्यूम कर चुके हो। ओके, आउट ऑफ 32 25 बिट्स यूज हो चुका है। आपने कंज्यूम कर चुके हो। सो अच्छा। यू जस्ट नीड टू यूज /25, और इसको आप किस में कन्वर्ट कर लो, बाइनरी बिट में कन्वर्ट कर लो। 32 बिट होता है 8 बिट प्लस 8 बिट प्लस 8 बिट प्लस एट हम्म। बिट ये हाँ होता जी। है हाँ जी। 8, 16, 24, 32, ऐसे निकलेगा। हाँ जी। The CIDR value that I have, that we have, which is /25. So I'm going to write it 1 2 3 4 5 6 7 8, डॉट लगाया, हाँ जी। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर डॉट लगाया, कितने हो गए, हम्म। 16। 1 16 2 हो गए। 3 4 5 6 7 8, अब कितने हो गए, ये गया ये गया ये गया, 24 हो गए। 24। हाँ जी। और हमारी वैल्यू कितनी है, 25। तो यानी 1। 25 0 0 0 0 0, 3 ओके। 5 6 7 8, ये ठीक है। इसका क्या हो गया, बाइनरी का फॉर्मेट हो गया, राइट। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और अगर आप ये बाइनरी कैलकुलेट करोगे ना, बाइनरी को, तो ये निकलेगा 255, ये भी आएगा 255, ये और भी ये भी 255 आएगा आएगा। 255 आएगा। हम्म। लेकिन ये जो 1 है, बाकी आइटम 0 है, तो इसको आप कैलकुलेट करो। 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4, 2 raised to power 5, 2 की power 6 and 2 raised to power 7। हम्म। इतने पूरे के पूरे आइटम तो जीरो हो जाएंगे, आंख बंद करके हम किसकी वैल्यू जीरो कर देंगे, करेक्ट।
ठीक है 2 raised to power 7 का मतलब हुआ 2 into 2 7 टाइम, 7 times 2 और इसको कैलकुलेट करोगे तो ये निकलेगा 128 प्लस 0 ओके इक्वल टू 128। आपने ओके सबनेट भी कैलकुलेट कर लिया 1255.255.255 और सबनेट कितना आया 128। 128 दिस अच्छा इज योर सबनेट। और ओके अगर आपके पास सबनेट है ना तो आईपी एड्रेस आप कैलकुलेट कर पाओगे कैसे। 256 एक नंबर है और जितना भी सबनेट आपका लास्ट डिजिट में आया है उसको आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए इसके साथ, ये आपकी अच्छा आईपी ये एड्रेस बन सिंपल है जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है तो अगर इसने बताया है कि आपको ये दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है तो आप 255.255.255.128 ये आपका सबनेट हो जाएगा और हम्म 128 आईपी एड्रेस आपके लिए क्या बन जाएगा, यूजेबल आईपी एड्रेस। ओके ठीक है क्लियर? हाँ जी एनी क्वेश्चन? नहीं नहीं हो गया क्लियर ये आपने ट्रेनिंग में ये भी वै, बताया हुआ है मुझे ये वैल्यू फिक्स्ड है। हम्म अब ठीक जितने भी है सबनेट्स आएंगे वो आप इसमें से माइनस कर दोगे। चलो एक फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ 192.168.1.0 और यहाँ पे हम दे देते हैं आपको 27। इसमें आपको दोनों आइटम कैलकुलेट करने हैं, सबनेट कैलकुलेट करो और दूसरा यूजेबल आईपी एड्रेस कैलकुलेट करो। 192.168.1.0 ये तो क्लास सी है 2 to the power 128 जी तो इसका सबनेट है 255.255.255.224 हेलो हेलो, हाँ जी यही है ना सबनेट इसका यूजेबल आईपी एड्रेस बताओ। सर 96 256 में से 224 लेस कर दो हम्म 2 32 आएगा 32
32 आईपी एड्रेस यूज करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं एंड दिस इज द सबनेट। जी शुभम आपका क्या आया? सर ये सब ने 255.255.255.224 224। और इसमें फिर 224 माइनस कर दिए 256 में से तो 32 आया। ठीक है, यस। ये अपने पास यूजेबल आईपी एड्रेस आ गया, ठीक है ना? ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया, मींस वी आर एबल टू कैलकुलेट द यूजेबल आईपी एड्रेस। नाउ हम्म coming to the picture of bnet services, right? हम्म Let's talk about the Azure VNet services. So anything that you want to add regarding the Azure VNet, means what is meaning of Azure VNet? Why it is important? ये तो वर्चुअल नेटवर्क है ना। Hmm. वर्चुअल नेटवर्क इसका आइडिया नहीं है जीत। चलो कोई प्रॉब्लम पर नहीं। ये वर्चुअल नेटवर्किंग मशीन्स पार्ट थोड़ा रन वीक। कराने के लिए आई मीन जब हम्म, हम वर्चुअल मशीन्स रन कराते हैं तो वर्चुअल नेटवर्क तो हमें कनेक्ट कराना ही पड़ता है, बनाना उसको एक बनाना पड़ता वर्चुअल है उसमें। नेटवर्क क्रिएट करने ही पड़ते हैं। विदाउट वर्चुअल हाँ, नेटवर्क इज नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट द वर्चुअल मशीन्स। correct. Not only to connect virtual machines, it is also help you to make a connection between different types of resources which are available on Azure portal, ठीक है? VPN बनाएंगे तब भी ये आएगा, एक्सप्रेस रूट क्रिएट करेंगे तब भी ये आएगा, राइट? अगर आप वर्चुअल नेटवर्किंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर वर्चुअल मशीन्स तब भी इसका हम इस्तेमाल करेंगे। लेट्स टॉक फ्रॉम द वेरी बेसिक अबाउट Azure VNet. Basically, the Azure VNet is categorized in two different parts. First one is default VNet, and second is create your own VNet. Now, in case of default VNet, अगर हम बात करें तो default VNet, it will give you the IP address 10.0.0.0/16 की range provide करेगा ओके and automatic create when you set up any virtual machine। जब भी आप कोई बाय virtual machine डिफॉल्ट वहां create पे आता करेंगे है। ना, ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाएगा बैकएंड में और हमें हाँ जी मालूम भी नहीं पड़ेगा, बिकॉज हाँ जी विदाउट वीनेट विदाउट वीनेट वी आर अनेबल टू क्रिएट एनी वर्चुअल मशीन। अब वीएम को क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे, और वीएम क्रिएट भी हो गई तो उसके अंदर कोई पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन नहीं होगी। वीनेट ओके ही आपके पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस दोनों को असाइन करवाता है, ओके ठीक है? बट हाँ जी प्रॉब्लम इसमें क्या होती है ना, इसमें बहुत ज्यादा आईपी एड्रेस का वेस्टेज होता है। अब /26 को कैलकुलेट कर /16 को कैलकुलेट करोगे ना, तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 16 नंबर ऑफ आईपीस बहुत ज्यादा आ जाएंगे इसमें। 65,536 आईपी एड्रेसेस आपको मिलेंगी जिनका कोई ओके यूसेज नहीं है। तो हम यहाँ से आई बिलीव सीआईडीआर उसका चेंज कर सकते हैं। And we can do that, we have हम्म option to do that, but जिसे मालूम नहीं है ना वो अगर ये डिफॉल्ट यूज करता है, विच इज रियली डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें यू हैव टू पे द अमाउंट। हाँ जी करेक्ट सेकेंड,
अगर आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के लिए किसी भी क्लाइंट के लिए उनके लिए वीएम या सर्वर या कोई और एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उस केस में यू ऑलवेज प्रोसीड with your own IP address, with your own VNet, you can say that। आप उस केस में क्या करेंगे, अपने खुद के VNet से जाएंगे, क्रिएट योर ऑन VNet। और जब आप ओके क्रिएट और योर ऑन VNet का क्रिएट करते हैं, इट मीन्स दैट यू आर मेकिंग योर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नेटवर्किंग। यू आर द ऑनर, और आप इसमें डिसाइड करोगे कि हमें कितनी आईपी एड्रेस चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया, आपने बताया 32 आईपी मिलेगी, फिर हमने हाँ कैलकुलेट जी किया था जिसमें 128 आईपी एड्रेस मिलेगी, हाँ जी राइट। तो अगर मुझे हम्म, सिर्फ 30 आईपी एड्रेस की जरूरत है या 25 आईपी एड्रेस की जरूरत है, तो हम यहाँ पे /27 लिख देंगे, ठीक है और /27 पे हमें एटलीस्ट 32 आईपी एड्रेस तो मिल ही जाएगी। ओके। तो जीत स्लैश जी, ट्वेंटी जो सेवन 32 आईपी एड्रेसेस हमारे पास आए हैं, तो इसमें कुछ हम्म, रिजर्व्ड भी होते हैं या सारे यूजेबल हैं? नहीं आ रहे हैं, उसी पॉइंट पे आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा अभी हमने बनाया क्या, वीनेट, अभी हमने वीनेट पे क्रिएट किया। अब हम्म वीनेट के अंदर क्या होता है, आपको सबनेट्स तैयार करने पड़ते हैं। करेक्ट वीनेट के अंदर सबनेट जाएगा और फिर सबनेट के अंदर आपके रिसोर्सेज आएंगे। वीएम हो सकता ओके है, डीबी हो सकता है, ठीक है, वेब एप्लीकेशन हम्म सर्विसेज हो सकती हैं, स्टोरेज हो सकता है आपका, जो कि एंड पॉइंट से हम्म जुड़ेगा। ये कुछ भी हो सकता है, ये आपके सबनेट से जुड़ जाएंगे, ओके राइट। लेकिन ओके एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, एज्यूर जो है रिजर्व 5 IP from every सबनेट। हर एक सबनेट में से 5 आईपी एड्रेस एज्यूर अपने लिए रिजर्व करके रखेगा। ओके तो जितनी आईपी एड्रेस आपने कैलकुलेट की है, उसमें से 5 आईपी एड्रेस अकॉर्डिंग टू द सबनेट आप उसको लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है इज दैट फाइन? ओके ठीक है। नाउ क्वेश्चन कि ये 5 आईपी एड्रेस का यूसेज क्या होता है। सो ओके you know that Azure also need to use some resources in the backend। Azure क्या करता हाँ है, जी बैकएंड में बहुत सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है। रिसोर्सेज इन द सेंस, स्विचेस हो गए, रूटर हो गया, फायरवॉल हो गया, वो अपने सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करता है। तो Azure जब भी आपको वीनेट प्रोवाइड करेगा, उन रिसोर्सेज से आपके वीनेट को कनेक्ट कराने के लिए आईपी एड्रेसेस भी आपसे ही मांगेगा। You have to provide the IP address to assign to connect your resources with the backend hardware। ओके All good? हाँ जी। So तो जीत हर जैसे एक सबनेट में इसमें से, जैसे या इसमें सी आई डी आर वैल्यू है 27, तो अगर हम्म, हम इसमें 5 ऐड कर दें तो अभी तो नंबर ऑफ यूजेबल आईपी एड्रेसेस आ सकते हैं। जैसे 27 + 5 हो गया, तो हाँ 32 आईपी एड्रेसेस आ जाएंगे। तो ये फॉर्मूला भी होता है या कुछ मैं गलत नहीं कह रहा नहीं हूँ? नहीं 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 नहीं, सॉरी, एक बार रिपीट करो, मुझे नहीं समझ में आया। नहीं, जैसे हमारे 27 सी आई डी आर पे यूजेबल आईपी एड्रेसेस 32 आ रहे थे, हाँ जी। तो जो सी आई डी आर वैल्यू होती है, अगर हम उसमें 5 ऐड कर दें तो भी हमारे नंबर ऑफ यूजेबल आईपी एड्रेसेस 32 आते हैं। जैसे सी आई डी, आपने बोला ना 5 रिजर्व्ड होते हैं। हाँ। नहीं, जस्ट मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, ऐसा भी कुछ लॉजिक है कैलकुलेट करने का नंबर ऑफ यूजेबल आईपी एड्रेसेस की सी आई डी आर वैल्यू में 5 ऐड कर दो तो नंबर ऑफ यहाँ पे यूजेबल 5 आईपी ऐड कर एड्रेसेस दो, आ जाएंगे? यहाँ पे हाँ इस जी हाँ जी 27 हाँ में। जी हाँ नहीं जी। नहीं नहीं नहीं, नो, ऐसा कुछ नहीं वी, है? वी, वी, अच्छा नहीं, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। अगर आपने बदलना है अच्छा ना, अच्छा तो 192.168.1.0, या तो ये 26 होगा, या तो 27 होगा, या तो 28 होगा, या तो 29 होगा, अच्छा ठीक है ठीक है। है ना। तो उसमें हमको एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है।
ऑल गुड। हाँ जी, हाँ जी, ऑल सर ये गुड। क्रिएट योर ओन वीनेट मेरे को क्लियर नहीं हुआ थोड़ा। क्रिएट योर ऑन वीनेट का मतलब ये है, मान लीजिए आई डोंट नो अबाउट द वीनेट, आई एम न्यू इन एज्योर सर्विसेज, ठीक है, और कहीं से मैंने यूट्यूब से देख करके वर्चुअल मशीन बनाना सीख गया। हम्म आई डोंट नो अबाउट द वीनेट, बट मुझे वीएम बनाने का ऑप्शन पता है, वो भी मैंने हम्म यूट्यूब से देखा है। तो हम क्या करेंगे, पोर्टल को ओपन करेंगे, पोर्टल को ओपन करने के बाद जो भी मेथड हमने सीखा है उस मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। कि मेथड में हमने सीखा कि कंप्यूटर नेम वगैरह प्रोवाइड करना है, ये सब हमने फटाफट से प्रोवाइड कर दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह इसमें हमने सब में जाकर के असाइन कर दिया, लाइक जो सिंपल मेथड इस्तेमाल किया जाता है। पासवर्ड की रिक्वायरमेंट थी, पासवर्ड भी हमने प्रोवाइड कर दिया लाइक दिस। ठीक है, जब आप नेक्स्ट नेटवर्किंग वाले विजिट पे जाओगे ना, तो ये अपने आप से एक वीनेट सेलेक्ट कर लिया, देखो यहाँ पे वीनेट दिखाई पड़ रहा है, वेब हम्म, वीनेट, और 10.0.0./24 ये सबनेट 24 दे रहा है, हुँ, लेकिन सीआईडीआर की वैल्यू /16 है। मतलब ये अपनी तरफ से CIDR सेलेक्ट कर लिया /16। ये कहाँ पे 24 है ना? ये सबनेट है 24। ठीक है। अगर अभी हम इसको क्रिएट कर देते हैं ना, उसके बाद वीनेट हम्म देखते हैं, हुँ, चलो क्रिएट ही कर देते हैं तब, ताकि क्लियर हो जाए डाउट। वर्चुअल मशीन इज रेडी टू यूज। अभी हम हुँ, हुँ, वीएम तो है ही है, हम डायरेक्टली ना वीनेट पे जाते हैं, एंड विल फाइंड वन वीनेट, वेब वीनेट के नाम से तैयार हुआ है। और हाँ अगर जी। हम इस वेब वीनेट की कैपेसिटी की बात करें ना, तो आप देखिए यहाँ पे /16 दिखाई पड़ रहा है। एड्रेस स्पेस में जाकर के आइडेंटिफाई करोगे तो 65,536 आईपी एड्रेस आपके इस वीनेट पे मिल रखी है। इज दैट करेक्ट? तो ये तो सबनेट वेस्ट है जी सर। वहाँ क्यों डिफरेंट आ रहा था फिर जब हम वीएम बना रहे थे? दोनों डिफरेंट है। VNet responsible to contain the whole address space, और सबनेट का मतलब आप उसमें से कितना यूटिलाइज करना चाहते हो। अच्छा, अच्छा। इज दैट ओके? यहाँ पे देखोगे तो आपको इतनी आईपी एड्रेस मिल रही है, मतलब एजूर ने बोला कि ये आपके लिए रिजर्व कर दिया मैंने। आपने तो ये कहा कि वेस्ट है नहीं सर मेरे ये। को ना, हाँ बेस्ड है ना, इसका यूसेज नहीं है। अगर हम्म, आप कहते हैं मुझे ना 500 आईपी चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसी में से तो निकालते जाओगे ना। अभी जैसे मैंने यहाँ पे नॉट यूजर, ये अपने आप आपको प्रोवाइड कर दिया 250 आईपी एड्रेसेस। हाँ जी, हाँ जी। Subnet responsible to connect your virtual machine
एड्रेस रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट सबनेट्स, एड्रेस स्पेस के थ्रू सबनेट को क्रिएट किया जाता है। इज दैट ओके? यस यस। तो जित जब हम वीएम बनाते हैं तो हम सिर्फ सबनेट में चेंज कर सकते हैं, एड्रेस स्पेस का हमारे पास चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है उसमें। डिफॉल्ट में नहीं है, जब आप अपना क्रिएट करोगे तो उसमें है। ठीक है done। डिफॉल्ट में तो ये डिसाइड करेगा ना, बिकॉज डे हाँ जी वन हाँ जब जी। हम वीएम क्रिएट करते हैं तब हम वीनेट नहीं सीखते पहले। राइट। 99% जो बंदा एज्योर पे पोर्टल ओपन करता है पहली बार ना, नॉट ओनली द एज्योर, किसी भी क्लाउड पे पोर्टल ओपन करता है, वो पहले यही क्रिएट करता है कि यार वर्चुअल मशीन चेक करते हैं कैसे दिखती है, या वर्चुअल मशीन ठीक है में ठीक है दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम का आरडीपी लेकर देखते हैं। दे डोंट नो ठीक है। अबाउट कि भाई बैकएंड में वीनेट भी होता है कुछ। वो तो धीरे धीरे जब ओके हम पोर्टल पे टास्क परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं तब याद आता है कि नहीं, वीनेट भी है, इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, आईपीज रहती हैं, पैसे जाते हैं, लाइक दैट। तो सो क्रिएट योर ओन, तब ये आता है ना। वीनेट हाँ, में अब वीनेट पे जाएंगे, वीनेट क्रिएट करेंगे वहां पे जो आप बोल रहे हो, क्रिएट योर और ऑन वही वीनेट वीनेट में। इस वीएम में यूज करेंगे हाँ जी जब हम बिल्कुल, वीएम नॉट क्रिएट ओनली द, करेंगे बाद में। हाँ जी, ऑन वीनेट, यहाँ पे हम खुद का वीनेट बनाएंगे, लोकेशन ऑफ ईस्ट सेंट्रल यूएस, और ये वो ऑप्शन है, आई डोंट वांट टू यूज द डिफॉल्ट, हम यहाँ पे अपनी खुद की आईपी एड्रेस डिसाइड करेंगे। 1.0, और नहीं चाहिए इतनी, 65,000 समथिंग आईपी एड्रेस में, यहाँ पे अच्छा अच्छा। 26 /26 यानी 64 आईपी एड्रेस मिल गई, और ओके स्लैश ओके। 27 करेंगे तो वही जो आपने कैलकुलेट किया था 32 आईपी एड्रेस मिल तो ये जाएगी, ऑप्शन दे देगा यहाँ पे। है ना? ठीक ये है सर पहले ठीक है। नहीं आता था क्या, अभी वो है? हाँ अभी चेंज किया है इन्होंने, आई थिंक एक हाँ डेढ़ महीने वही ना, पहले ही। पहले नहीं आता था हमने जब पढ़ा। ये नहीं अब आता पहले था। आपने पहले आपने यहाँ पे लिखना पड़ता था कैलकुलेट करके, बट अभी इन्होंने हाँ हाँ ऑप्शन दे वही दिया हाँ कि जी। भाई कैलकुलेशन का टाइम बचा ले। अच्छा अच्छा यस यस ठीक है। यस। क्लियर नाउ? हाँ यस। जी क्लियर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सी वन मोर पॉइंट जस्ट वांटेड टू डिफाइन, इन द प्रॉपर्टीज ऑफ वीनेट हमें जो काम है, ठीक है, हमें अगर आईपी एड्रेस का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो नॉट एन इशू, बट हमें जो फोकस रखना है अपने वीनेट से रिलेटेड, वो ये दो चीजें हैं, सर्विस एंड पॉइंट और प्राइवेट एंड पॉइंट। इन दोनों के जरिए हम उन रिसोर्सेज से कनेक्ट कराएंगे जो रिसोर्सेज किसी तरीके का एडेप्टर नहीं कंटेन कर रखे, जो रिसोर्सेज किसी तरीके से आईपी एड्रेस से नहीं जुड़ी हुई हैं, उनसे हम इन दोनों के थ्रू कम्युनिकेट कराएंगे। ऑल गुड? अच्छा हाँ जी। यस। स्टेप बाय स्टेप चलो, चीजों को समझने की कोशिश करो, कि ये ओके पूरा जो स्ट्रक्चर डिजाइन हो रहा है ना, इसमें हर एक पार्ट का ना बहुत यूनिक रोल है। हाँ जी। देन यू आर एबल टू मैनेज द सर्विसेज ओवर अ पोर्टल। विद इन मिनट आप समझ जाओगे कि क्लाइंट करना क्या चाहता है, पूछना क्या चाहता है, जिसके हाँ, लिए अगर आपको एक चीज का बहुत सारे लॉजिक क्लियर है कंपोनेंट ना आने तो वो चाहिए। तो फिर सही रहता है। एग्जैक्टली, देन यू कैन ऑल्सो कंसल्ट टू योर क्लाइंट कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसे कर लो आप। हाँ बट उसमें हाँ थोड़ा जी सा टाइम ऑब्वियसली। लगेगा, इमीडिएटली नहीं होगा, टाइम लगेगा, बट चीजें आपने सीखनी हम्म। पड़ेंगी। ऑल गुड फॉर टुडे? ओके ठीक। यस हाँ यस। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलो, ग्रेट, मिलते हैं कल 2 बजे। आई सेंड यू द ठीक। रिकॉर्डिंग इन नेक्स्ट 1 आवर, है ना, 1 घंटे में आपको रिकॉर्डिंग सेंड ठीक है करता जी हूँ। ठीक है। थैंक यू सो ओके मच, सर। थैंक यू। माय प्लेजर, टेक ओके केयर, बाय बाय। ओके बाय। बाय।